السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملو روی کو مہاتما گاندھی انسپریشن ایوارڈ ملا ہے۔ رویندر بھاٹی میں منعقدہ پروگرام میں وزیر جوبلی کرشنا راؤ مہمان خصوصی تھے۔ مہاتما گاندھی انسپریشن ایوارڈ 2023 پروگرام سروٹیلیا آرٹس اکیڈمی کے زیر اہتمام سلویل کارپوریشن کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس دوران سابق ایم پی ملو روی کو مہاتما گاندھی انسپریشن ایوارڈ دیا گیا۔ تلنگانہ خانساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے گڈم پرساد کمار کو مبارکباد دی، جنہیں متفقہ طور پر تلنگانہ خانساز کونسل کا اسپیکر منتخب کیا گیا ہے اور انہوں نے اسمبلی میں اپنے چیمبر میں عہدہ سنبھالا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ویدک اسکالرز کے نعروں اور آشیرواد کے درمیان صبح ریاستی سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں اقتصادی ترقی اور منصوبہ بندی کی وزارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ محکمہ فائنانس کے اسپیشل چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ، ٹرانسکو کے اسپیشل چیف سیکریٹری سنیل شرما، محکمہ خزانہ کے سیکریٹریز سری دیوی ہریتا اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے چارج سنبھالنے والے ڈپٹی سی ایم کو مبارکباد پیش کی۔ نیلم راج شیکھر ریڈی کی برسی کے موقع پر کونڈاپور میں خواتین ریزرویشن بل بااختیار بنانے کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر پون چندر راؤ، ڈائریکٹر NRRRC نے کی۔ ممتاز سماجی کارکن اور ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر راما میلکوٹے گارو مہمان خصوصی تھے۔ خواتین کے جتنے بھی حقوق انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک حاصل کیے ہیں وہ خواتین کی طویل جدوجہد سے حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نظام میں موجود تضاد خواتین کے حقوق کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور پدرانہ معاشرہ ہر طرح سے ان حقوق کو غیر فعال کرنے میں رکاوٹ ہے۔ دیوسر کلگام میں وکشت بھارت سنکلپ یاترا نکالی گئی۔ اہم معلومات کو پھیلانے اور شہریوں کو مرکزی حکومت کی فلیگ شپ اسکیموں اور پروگراموں کے بارے میں جانکاری سے بااختیار بنانے کی سرتوڑ کوشش کے تحت کلگام کے دیوسر علاقے میں وکشت بھارت سنکلپ یاترا مہم کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران کلگام پولیس کے افسران نے جموں کشمیر پولیس کے مختلف وقتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ معاشرے کو جرائم اور منشیات سے پاک بنانے پر بھی زور دیا گیا، جس کے لیے عوام سے بھرپور شرکت کی کوشش کی گئی تاکہ معاشرے کو ہر لحاظ سے بہتر بنایا جا سکے۔ لابھ ملنا چاہیے کہ ایک بندے کا اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ پورے کلگام کے ایڈمنسٹریشن جو کہ گراس روٹ لیول پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، اور PRIs جو کہ جن کو ہم نے پچھلے 3 سال سے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائے، اچھی پلاننگ کرے، بیٹر پلان ایکسیکیوٹ کرے، ان کا آڈٹ بھی کروائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں CSS اسکیمز کی امپلیمنٹیشن کرنے کا اس میں تھوڑی سی بہتری لائے۔ ان پروگرامز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے مبارکباد دینا چاہتا ہوں یہاں پر میونسپلٹی کو، اسپیشلی رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، یہاں پر جنہوں نے اس پروگرام کو بڑی میٹیکولس طریقے سے ہر جگہ ہر گاؤں میں گئے اور بڑا اچھے طریقے سے کیا ہے۔ آج کے جو میں اس لیے آج ہمارے یہاں سب جو مہمان خصوصی ہے شیخ فیاض سر، جو کہ ایک سینئر آفیسر ہے، کیس آفیسر ہے، اور سر آف دا سوائل ہے، اور ان کے بارے میں سب کو پتا ہوگا، تو اٹ واز پریولیج سر، بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے اور اس محفل کی زینت بڑھاتے ہوئے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو جائیں، ہم تو روز ہی ہوتے ہیں سر، آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ریاستی انفارمیشن، ریونیو اور ہاؤسنگ منسٹر کا چارج پنگولیٹی سنواس ریڈی نے سنبھال لیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے سنبل ضلع کے چندوسی میں بداون روڈ پر واقع گورنمنٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایک روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکردہ 2 ویلر کمپنی ہیرو موٹو کارٹ پر پہنچی خواتین کو روزگار کے موقع فراہم کر کے بااختیار بنائے، جس میں سنبل ضلع کے علاوہ دیگر اضلاع کی خواتین بھی حصہ لینے آئی تھی۔ اس بارے میں معلومات دیتے ہوئے روزگار کی فراہمی کے نوڈل راہل کمار شرما نے بتایا کہ اس روزگار میلے کا بنیادی مقصد خواتین کو روزگار کے موقع فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانا ہے، جبکہ گورنمنٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چندوسی کے پرنسپل نے کہا ہے کہ ہم ہر روز روزگار میلے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کا روزگار میلہ خاص طور پر خواتین کو روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ راہل کرشن شرما کس پد پہ ہیں؟ نوڈل پردھاناچاریہ جنپد سنبل آج کیا عہدے کی پیشکش چندوسی میں روزگار میلے کا آیوجن ہوا ہے،
جس میں ہیرو موٹرس آئی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہیرو موٹرز ہماری یہی پرائورٹی رہتی ہے کہ یہ میکزیمم جو سرکار کی پراتھمکتا ہے مطلب گرلس کو آگے بڑھانا، تو ہم ان سے یہی انوروھ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جنپد کے بچے لڑکی ہیں ان کو آپ پرائورٹی پہ جو ہے نیوجت کرائیں اپنے یہاں. اچھا، کتنے بچوں کو سلیکٹ کریں گے یہ؟ یہ لگ بھگ 40-50 کے لگ بھگ بچے، کن کن ٹریڈوں میں بچے ہیں؟ ٹرنر، فٹر، الیکٹریشین، مشینسٹ، ڈیزل موٹر مکینک، ویلڈر. سر میرا نام انل ہے یہ. جی، کہاں سے آئے آپ؟ میں سر دہرادون سے، ہیرو ہردوار پلانٹ سے. اچھا، آج جو چندوسی ITI میں روزگار میلے کا آیوجن کیا جا رہا ہے، جی. خاص طور پہ یہ چھاتاؤں کے لیے ہے، تو کیا کہیں گے مہیلائیں کو آپ روزگار کا افسر فراہم کر رہے ہیں؟ سر ہم ہر سال اپنا یہاں پہ چندوسی گورنمنٹ ITI میں ہمیں ITI دوارا انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ہر سال کم سے کم ہمیں جیسے ہم کچھ زیادہ سے زیادہ اپنے گرلس کو اپنا پریورٹی دیتے ہیں کہ ان کو کیمپس اپنا ارینج کریں زیادہ سے زیادہ. لیکن ابھی پھر بھی ریکوائرمنٹ جو UP سے ہے کہ ہمیں کمی ملتی ہے، ہم کوشش پھر بھی کر رہے ہیں مہیلاؤں میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اور روزگار ان کو پرووائڈ کروانے کی. آج کتنی چھاترائیں جو ہیں ایگزام دے رہی ہیں؟ سر ابھی قریباً 25 اراؤنڈ اپنا چھاترائیں ہوں گی بھی جو بھی ایگزام دے رہی ہیں. سر یہ ادر ڈسٹرکٹ سے بھی اپنا جو سلطان پور ہو گیا، اتراکھنڈ سے بھی کھٹیما ہو گیا، پیلی بھیت ہو گیا، اور سنبل ڈسٹرکٹ سے بھی اپنا کافی چھاترائیں آ رہی ہیں. ٹوٹل کتنے بچوں کو سلیکشن کریں گے آج آپ؟ سر ہماری پریورٹی رہتی ہے زیادہ سے زیادہ اپنا سلیکشن کرنا ہے. قریباً 25 اگر وہ کرتے ہیں تو قریباً ہم 18 تک اپنا سلیکشن ریشو اپنا رکھتے ہیں. 18 یا 17 اپنا ہم دیتے رہتے ہیں. گرلس کا ہماری پریورٹی یہ رہتی ہے گرلس کو زیادہ سے زیادہ مہیلا کو اپنا آگے اپنا پروتساہن دیں. کہ راج کے اودیوگک پرشکشن سنستھان چندوسی میں روزگار میلے کا آیوجن کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے روزگار میلے کا آیوجن ہے، کیا کہیں گے؟ سر ہم لوگوں کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ روزگار میلے ہر منتھ میں ہم کراتے رہتے ہیں، جس میں جو یہ کمپنی ہے یہ کیول اسپیشل مہیلاؤں کے لیے ہوتی ہے. مہیلاؤں کی ڈسٹرکٹ، کیونکہ یہ سنبل ڈسٹرکٹ سے ہم جو باہر بھیج رہے ہیں تو ان کی پریورٹی میں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سیفٹی پرپز سے اور گارجینس کے پرپز سے یہ وہاں پر جائیں، اس لیے یہ اسپیشل کمپنی ہم نے مہیلاؤں کے لیے بلا رکھی ہے. انڈس اسپتال وائزاگ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. واقعے کے وقت دوسری منزل پر 20 تا 40 کے قریب مریض موجود تھے. مقامی اطلاعات کے مطابق حکام نے مریضوں کو دوسرے اسپتال منتقل کیا اور فائر سروس کے آفیسرز نے آگ بجھانے میں کوشش کی. مزید تفصیلات کا انتظار ہے. حیدرآباد کے راجندر نگر میں واقع کراچی بیکری میں ایک بھیانک حادثہ پیش آیا. بیکری کے کچن میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں 15 افراد شدید زخمی ہو گئے. ان میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی. بیکری انتظامیہ نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی. دھماکے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حادثے پر رد عمل کا اظہار کیا. میڈیکل اور محکمہ صحت کے پرنسپل سیکرٹری کو 15 کارکنوں کو بہتر طبی علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی. عہدیداروں نے چیف منسٹر کو مطلع کیا کہ زیادہ تر زخمیوں کا تعلق اتر پردیش سے ہے. گڈی ملکا پور کی غیر آباد مسجد میں داخلے پر 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس علاقے میں 2 فرقوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. وقف بورڈ انسپیکٹر نے مسجد کا معائنہ کیا اور پولیس میں شکایت درج کروائی جائے گی. اور ذرائع کے مطابق گڈی ملکا پور مارکیٹ میں واقع 450 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد غیر آباد ہے جہاں دوسری عبادت گاہ سے راستہ مسجد کو جاتا ہے. اور اس غیر آباد مسجد میں غیر قانونی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. یہاں پر شراب، گانجا اور بھی غلط حرکتیں کی جاتی ہیں. مسجد کی صفائی کے لیے عرفات ساکن ٹولی چوکی اور بابو میاں ساکن مراد نگر پہنچے تھے. انہوں نے مسجد کو آباد کرنے کی غرض سے ویڈیو بنائی تھی. اس دوران چندرا کلا ریڈی انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کے جونیئر اسسٹنٹ نے گڈی ملکا پور پولیس میں شکایت کی. یہاں مندریں ہیں کہ کچھ لوگ امن میں خلل پیدا کر رہے. اس پر پولیس نے دونوں نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور عرفات اور بابو میاں کو گرفتار کر لیا. آج 13 تاریخ دسمبر 2023 کے دن 1 بجے چندرا کلا ریڈی نام کے جونیئر اسسٹنٹ انڈومنٹس ڈپارٹمنٹ کے کمپلینٹ کی ہے. اس میں 2 انجانے شخص ٹیمپل میں اندر حصے میں آ کے ویڈیو وائرل کر کے یہاں پہ مسجد ہے، گندگی ہے، یا کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے. CM صاحب کے اوپر اور دوسروں کے اوپر، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر تھوڑا انٹورڈ تھنگس بولنے سے جو ہے اس کے اوپر ایک FIR درج کیا گیا ہے. وہ لوگ دونوں کی حراست میں لیے ان لوگوں کے اوپر قانونی کارروائی کیا جائے گا. یہ کون ہے شخص گلشن کالونی ٹولی چوک میں رہتا ہے.
दूसरा बाबू मियाँ अमल का एक मुरादनगर। वॉकबोर्ड से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, वॉकबोर्ड वाले दूसरे इश्यूज में जो है हमारे ये इस ताल्लुक से कोई भी वॉकबोर्ड वाला नहीं होता। सर ये जो वीडियो वायरल हो रही ये क्रिमिनल के ऊपर किसी बुक नहीं है, उनके ऊपर भी जो है तहकीकात करेंगे, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो बराबर जो है उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ऑर्बिन लैब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रवि दपाटी ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए कहा है कि डायरेक्टर रघु कुमारी ने जो उन पर गलत इल्जामात लगाते हुए रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में केस बुक किया है उसे गलत करार दिया है। आइए देखते हैं रवि ने मजीद क्या कहा। मेरा नाम रवि कुमार दापत्ती है। मैं ऑर्बिन लैब्स इंडिया का डायरेक्टर एंड CTO हूँ। लास्ट 3-4 डेज में बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारा अदर डायरेक्टर मीडिया को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के पूरा कंपनी को मिसलीड कर रहा है। वो लोग कह रहा है कि हम लोग उसका सिग्नेचर फोर्जरी करके हम लोग डायरेक्टर ऐड किया था, मी एंड स्वामी गारू। ये सभी असत्य है, इसमें there is no truth in this. So by default we are the majority stakeholders in the company, the US company which holds around 99.9% here, and Raghu Kumari madam उसको 0.1% स्टेक है इसमें। वही सर। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए दस्तूर हयात है। इसका तकाजा ये है कि हर साहिब ईमान कुरान मजीद को इतना सीखे कि वो इससे बर और रास्त इस्तिफादा के काबिल बन जाए, मगर अरबी जुबान से नावाफियत की वजह से आम मुसलमानों का किताब इलाही से ताल्लुक नाज़िरा कुरान तक महदूद है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अवामुल नास को कुरान की जुबान सिखाने की तहरीक शुरू की जाए ताकि आम लोग कुरान मजीद से रूबरू हों। इंशाल्लाह इसकी बरकत से उनमें ईमानी हरारत और इस्लामी वलवला व जोश पैदा होगा। इस काम को मुनज़्ज़म और मुयस्सर अंदाज में अंजाम देने के लिए 2021 में इसराइल एजुकेशनल फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। इदारे के जिम्मेदारों को शुरू से इस बात का एहसास था कि अवाम को कुरान मजीद की जुबान सिखाने के लिए वो निसाब तालीम और तरीक़े तदरीस से इख्तियार नहीं किया जा सकता जो आमतौर पर दीनी मदारिस में राइज है, बल्कि इसके लिए जदीद निसाब और उसके साथ साथ नया नहज तदरीस इख्तियार करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तंजिल अपने क़याम के रोज़ अव्वल से ही इस जहद में काम कर रहा और उम्मीद है कि बहुत जल्द मुजव्वज़ा व निसाब मुरतब हो जाएंगे। इस निसाब के मुताबिक लोगों को कुरान मजीद का मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती कोर्स कराया जाएगा। इस ज़िमन में इस बात की कोशिश की जाएगी कि आम लोगों के साथ साथ में तालीम याफ्ता अफराद पर ज्यादा तवज्जो दी जाए ताकि वो कसीर तादाद में इन कोर्सेज में हिस्सा लें। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से नए वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए लचक दी है ताकि सियासी जमातों के साथ ताउन किया जा सके। खुसूसी खुलासा नजरसानी 2024 के हिस्से के तौर पर गलती से पाक वोटर लिस्ट GHMC हेडक्वार्टर में सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ खुसूसी समरी रिवीजन 2024 पर एक मीटिंग मुनक्किद की गई। कांग्रेस पार्टी के आदिलाबाद पार्लिमानी इंचार्ज डॉक्टर नरेश जाधव ने कहा है कि वो दिल्ली में पार्लियामेंट की इमारत पर हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। वो जुमेरात के रोज कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा शहर मुस्तकिल के प्रजा सेवा भवन में कांग्रेस के ज़र एहतमाम मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट पर हमले में सिक्योरिटी की नाकामी बराह रास्त नजर आ रही। उन्होंने सिक्योरिटी में कोताही के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की अखलाक़ी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। जो कल पार्लियामेंट में इंसिडेंट हुआ इसका जिम्मेदार अपने होम मिनिस्टर और उसके साथ साथ अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह जी लेना चाहिए। जो 22 साल के नीचे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, वही दिन कल जो पार्लियामेंट में घुसे गए थे जो 3-4 लोग जो इंसिडेंट हुआ था, जो ऐसा नतीजा होना ये अच्छा नहीं है, देश के लिए बहुत बुरा है।
ऐसे इंसिडेंट से अपना जो भारत देश का इमेज वर्ल्ड में डैमेज होगा। ऐसे नतीजों को देखते हुए बीजेपी पार्टी का जिम्मेदारी होती है कि नया पार्लियामेंट तो मोदी मैं बनाया, मेक इन इंडिया मैं बनाया बोल के रोज़ जो लोगों को बोलते हैं, फिर आपने मेक इन इंडिया के दौर पे आप नया पार्लियामेंट जो कंस्ट्रक्शन किए, कम से कम बेसिक उसमें सिक्योरिटी नहीं रहने का वजह आप जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट को सिक्योरिटी अगर आप नहीं दे सकते हो, 143 करोड़ जो आवाम है भारत देश में, इसको कैसे आप सिक्योरिटी देंगे? इसके ऊपर गौर से सोचना चाहिए। और ऐसे ही कल का जो नतीजा जो हुआ पार्लियामेंट में, उसको अगर एग्जाम्पल देखे तो भारत देश में जो चाइना का आक्रमण कितना हुआ, इसका भी जवाबदारी आप मोदी जी देना चाहिए। तो मैं भारत देश के 143 करोड़ आवाम से गुजारिश है, इसके ऊपर नज़र रखते हुए जो मोदी जी रोज़ सुबह से शाम तक एक ही बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी ये बोल के कौम के ऊपर बात करते हैं, यही काम करते हुए इसके जिम्मेदारी बीजेपी वाले लेना चाहिए। जो कल पार्लियामेंट के इंसिडेंट हुआ उसके जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह जी होम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो रिजाइन करके इसका जिम्मेदारी लेके इसके ऊपर मोदी जी भी इसका जवाब देना चाहिए बोल के मैं ये दो बात बोलने के लिए मैंने को मौका दिया। सबको मैं मेरा नमस्कार, आदाब, जय हिंद। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने होशियारपुर में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और लोगों की शिकायत का जायजा किया। न सिर्फ उनके मसाइल को मौके पर ही हल किया बल्कि अफसरान को उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत भी की और कहा हम अवाम की हुकूमत हैं और हर वक्त उनकी खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब के कोने कोने से अवाम के मसाइल हल करते रहेंगे। ऑल इंडिया गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस KKC के रियासती चेयरमैन कौशल समीर, रियासती जनरल सेक्रेटरी पोंगली संपत रेड्डी, ऑटो डिपार्टमेंट के सदर बलराज, सेक्रेटरी रुद्रक्षा मल्लेश, कुतुबुल्लापुर इंचार्ज हनुमंत रेड्डी, अंजनेलू और दीगर रियासती पंचायत राज महकमे व ख्वातीन व अतफाल के उमूर के वज़रा के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और कहा रियासत तेलंगाना में ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफर के लिए ऑटो ड्राइवरों को परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तमाम तबकात के लिए इंसाफ का सोचेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। 15 दिन सब्र करें। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर डिपार्टमेंट के रियासती सेक्रेटरी रुद्रक्षा मल्लेश ने कहा है कि आपको हर पार्टी की ऑटो एसोसिएशन की बातों पर यकीन करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मेलावरम की MLA वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने किए गए वादों को अमली जामे न पहनाकर धोखा दिया, लेकिन CM जगन्ना ने 2019 के इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों को अमली जामे पहनाया है। MLA वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने जमेरात को 40 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सेक्रेटेरिएट की इमारत, 21.8 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा रैतु भरोसा केंद्र की इमारत और 20 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा तरक्याती कामों का जमेरात को इफ्तिताह किया। रियासती सनत IT व कानून साजी के उमूर के वजीर दोदेला श्रीधर बाबू डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में ओहदा संभालिए। शादनगर के साबिक MLA बकानी नरसिम्हा ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि शादनगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के हालात अबतर हैं और हुकाम को किसी तालीमी इदारे को बगैर किसी कम से कम सहूलियात के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साबिक MLA बकानी नरसिम्हा के हेलो शादनगर KP में शाये होने वाले मजमून पर रद्दमल देते हुए कहा है कि दीगर मुतालियात महाशाया की तरह हैं। उन्होंने कॉलेज का दौरा किया और वहां सफाई की सूरत हाल देखकर हैरान रह गए। तदरीसी अमले ने तलबा से बात की और वहां की चीजें जानी। उन्होंने बजात खुद कॉलेज को अटेंड और सुपर की सहूलत की कमी, पीने के पानी का मसला और बिजली के नाक़िस सहूलत की वजह से दरपेश मसाइल का जायजा लिया। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल के अहाते में नामालूम अफराद की जानिब से मेडिकल तलबा पर हमले के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने बतौर एहतजाज अपनी तिब्बी खिदमात का बायकॉट कर दिया। रिम्स मेडिकल कॉलेज में ज़िले तालीम तलबा ने इल्जाम आयद किया है कि हॉस्टल में तलबा को अदम सहूलियात के बाइस रिम्स डायरेक्टर के साथ तलबा की बहस हो गई थी, जिस पर रिम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर
डॉक्टर क्रांति के हमरा नामालूम बैरूनी अफराद निस्फ शब को कैंपस में दाखिल हुए तलबा से बहस की और तलबा पर हमला किया। एहतजाजी तलबा ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर क्रांति का पुतला नजर आतिश किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और रिम्स डायरेक्टर की मुअत्तली का मुतालबा किया। सर्कल इंस्पेक्टर 2 टाउन अशोक ने बताया कि तलबा पर हमले के इल्जाम में डॉक्टर क्रांति, वसीम और शिव को गिरफ्तार किया गया। జరిగింది ఆ టైంలో డాక్టర్ క్రాంతి మాకు ఒక 2-3 మిస్డ్ కాల్ చేసిండు, మనకు తెలియదు ఎందుకు చేసిండు. రిటర్న్ వచ్చి హాస్టల్లో కార్ దిగగానే మా వెనకాల ఇంకో కార్లో ఇంకొక 2 బైక్స్లో ఇంకా డాక్టర్ క్రాంతి కొంతమంది రౌడీలను తీసుకొని వచ్చి మా పైన దాడి చేయడం స్టార్ట్ చేసిండు. ఎందుకు దాడి చేస్తుండ్రో అని మేము క్వశ్చన్ చేస్తే, నువ్వు డైరెక్టర్కి ఏమైనా ఎదురు తిరిగినావా, డైరెక్టర్ సార్ తోటి రివర్స్ మాట్లాడినావా, డైరెక్టర్ సార్కి ఫ్యాన్స్ వీళ్ళంతా, డైరెక్టర్ సార్ తోటి ఏమన్నా అంటే ఇట్లనే అవుతుంది అనేసి అంటే రౌడీలను తీసుకొచ్చి క్యాంపస్లో కొట్టడం జరిగింది. అడ్డుకోబోయిన మా ఫ్రెండ్ ఒక అతన్ని పారిపోతున్నప్పుడు అడ్డుకోబోతుంటే అతని కార్తో పాటు అలా తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఒక 100-150 స్పీడ్లో గేట్ దాకా తీసుకెళ్ళిండ్రు. మా ఫ్రెండ్స్, మిగతా ఫ్రెండ్స్ ఇటు నుండి వెళ్ళి గేట్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల అతను ప్రాణాపాయం తప్పింది. లేకపోతే మాత్రం అతనికి ఏదో ఒకటి జరిగి ఉండేది. ఇది అయితే మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఎవరో రౌడీలను తీసుకొచ్చి క్యాంపస్ లోపల ఉన్న డాక్టర్స్ని కొట్టడం ఇదైతే కరెక్ట్ కాదు. డైరెక్టర్ని క్వశ్చన్ చేసే రైట్ కూడా డాక్టర్స్కి లేదా అనేసి నేను అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ తప్పులు జరుగుతుంటే కూడా ఎవరు ఏమనకుండా ఉంటారా? మీ పేరు? ఆదిలాబాద్లోని గత రాత్రి 11:20 సమయంలో రిమ్స్లోకి కవిరాజు అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు నిన్న హాస్టల్ ఎవరైతే ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ హాస్టల్లోనికి అక్రమంగా ప్రవేశించి ఫిర్యాదుదారుని ఎవరైతే కవిరాజు అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే డాక్టర్ క్రాంతి సహాయంతో క్రాంతి మరియు అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ సంజయనగర్ చెందిన శివ మరియు వసీంతో పాటుగా మరో 2 వ్యక్తులు అక్రమంగా ప్రవేశించి వాళ్ళను కొట్టిన కారణంగా వాళ్ళపైన ట్రెస్పాస్ కింద మరియు అదేవిధంగా అటెంప్ట్ మర్డర్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్లీ మేము సీన్కి రీచ్ అయ్యి అదేవిధంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి వసీంని, క్రాంతి గారిని, అదేవిధంగా మరో వ్యక్తిని ఎవరైతే ఇంజూరీ అయినా అతన్ని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ముగ్గురు మా యొక్క కస్టడీలో ఉన్నారు. ఈ కేసుపై అసలు రిమ్స్ డైరెక్టర్కు మరియు విద్యార్థుల మధ్యలో గల కారణం ఏంటనే తెలుసుకొని దర్యాప్తు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में वैदिक स्कॉलर्स के नारों के दरमियान रियासती वजीर बराए इत्तलात व महसूलात और मकानात का चार्ज संभाल लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर के अहले खाना ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर के साथ MLA कोन्नानेनी सांबशिवराव और वेंकटेश्वरुलु PM कोरम कनकैया व मुलाविरशम और बालवू नायक आदि श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद रहे। अनुसोया सीतक्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में वैदिक स्कॉलर्स के नारों के दरमियान रियासती पंचायत राज, देही तरक्की और ख्वातीन की बहबूद के वजीर का चार्ज संभाल लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर के अहले खाना ने शिरकत की। इस मौके पर MLA नागराजू और नैनीन राजेंद्र रेड्डी के साथ कई दीगर MLAs ने महकमे पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, कमिश्नर हरमंज राव, सेक्रेटरी समिता सब्रवाल और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने वजीर को मुबारकबाद दी। 30 अफ्रीकी सहाफियों का एक ग्रुप 2 दिन के लिए हैदराबाद शहर का दौरा करेगा। उन्होंने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में जानने के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया है। इसी के तहत वो शहर हैदराबाद पहुंचे। वो 2 दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे। 14 तारीख को भारत बायोटेक का दौरा करने के बाद वो टी हब और शिल्पाराम का दौरा कर रहे। 15 को वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रामोजी फिल्म सिटी का दौरा करेंगे और 16 को वापस जाएंगे। जनरेटर शरीफ के लिए रवाना हुए हर साल की तरह इस साल भी करोला गली नंबर 1 मुरादाबाद में अयूब शादी हॉल के पीछे से चादर निकाली और जनरेटर शरीफ के लिए रवाना हुए। हम आपको वहां के कुछ झलकियां दिखाते हैं और बात करते हैं हजरत सैयद वासिफ मियां से। हजरत क्या नाम है आपका? मेरा सैयद वासिफ नाम है और मियां। कौन सी जगह कराई जाती है? ये तो करोला कराया, ये है करोला अयूब नंबर 1 गली अयूबी हॉल के पीछे खानगाह मोहतरम साबरी कुद्दूसिया। चादर निकाली जा रही है यहाँ से, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ से हर साल निकलती है और ये जनरेटर शरीफ जाती है। हमारे दादा हैं, दादा मोहतरम शामिया, मैं उनकी छठी पुरुष में हूँ, हजरत मोहतरम शामिया की, और ये हर साल यहाँ झंडा लेकर चादर लेके जाते हैं और वहाँ लगाते हैं।
और डॉक्टर सैयद शाहिद के हाथ में देते हैं और वो उसे नष्ट करते हैं। कितने वर्षों से लगभग निकाली जा रही है? जी कितने सालों से निकाली जा रही है? करीब इसे तो 10-12 साल हो गए निकलते हुए। अच्छा, कौन कौन लोग मौजूद हैं आपके साथ? साथ तो मौजूद तो काफ़ी लोग हैं, जैसे कि नाम उनके? जैसे नाम है मेरे सैयद मोहम्मद हाशिम मियाँ, और नाम तो काफ़ी कहा था मैं आपको बताऊँ। बहरहाल मैं हूँ और मेरे ये कमर अली हैं और नाम इरशाद भाई हैं, हमारे फरीद हाफिज जी हैं, काफ़ी लोग हैं और मनेठे से भी जुड़े हुए हैं हमसे लोग। लगभग टोटल कितने लोग जाएंगे सर? यहाँ से करीब ऐसी 30-20 ऐसी 40 करीब हो जाएंगे, जोड़ते जाएंगे बाहर से इतने हो जाएंगे इतने लोग। गाड़ी कोई दूर तक जाएंगे पैदल वहाँ से, उसके बाद तो हम गाड़ी में बैठते हैं चले जाएंगे। फिर मनेठे वहाँ थाने में हमारा। पूरा नाम क्या है? जी सूफी तकरीर अहमद अशरफी। कहाँ से कहाँ तक तशरीफ ले जा रहे हैं? जी ये हमारे कोहिनूर किराए से और अयूबी शादी हाल गली नंबर 1 से परचम कुशाई होती है हज़रत सैयद बासित मियाँ हुजूर की क़यादत में, और जनरेटर शरीफ जाते हैं। जनरेटर शरीफ का आज से और शुरू हो जाएगा। कितने दिन का चलेगा ये? ये 21 तारीख तक चलेगा और इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। 8-10 दिन लगातार उसका माहौल रहता है। कौन कौन सी तारीखें हैं? अंग्रेजी 21, 22, 23 और 24। और चांद की? 24 से बस चांद की से अंदाजा हो जाएगा। वनकुंडा के एमएलए बोला ब्रह्मा नायडू, जिन्हें ये मालूम हुआ है कि वनकुंडा हलके के वनकुंडा देही मंडल के जालापालम गांव के सरपंच गंगू नटला रवि का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया, उनकी मैयत की इयादत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा है कि रवि मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं उन्हें अपने खानदान का फर्ज समझता हूं और आज हम ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि वो यहाँ नहीं है। उनकी मौत सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी सदमा है। उनके अहले खाना से गहरी ताज़ियत की। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो उनके खानदान के अफराद को हमेशा सपोर्ट करेंगे। साबिक एमएलसी खान साहिब सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस जफीदीन भट्ट ने ताज़ियत के लिए खाईपुरा खाक बडगाम का दौरा किया। इंतकाल कर गए अहलिया गुलाम मोहम्मद लोन दौरे के दौरान दोनों ने खानदान के अफराद से हमदर्दी का इजहार किया और नेक रूह के लिए सुकून और मुतासरा खानदान के अफराद को सब्र व ताकत के लिए दुआ की। उन्होंने मरहूम के रूह के लिए सुकून और गमजदा खानदान को ये नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत के लिए दुआ की। दौरे के अलावा इलाके के मुकामी लोगों ने पीने के पानी की फराहमी और बिजली की कमी से मुतल्लिक मुतअद्दिद शिकायत के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने मुकामी अवाम को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मजलिसी कारवान के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर सैयद जलील एमए हकीम, इंस्पेक्टर्स गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन और टप्पा चबूतरा पीएस के साथ कुतुब शाही मस्जिद का दौरा किया और जाए वक्फ का मुआयना किया। कारवान के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने पहले ही 16 सितंबर 2023 को एक खत में वक्फ बोर्ड के साथ टप्पा चबूतरा, कारवान, सब्जी मंडी, गुड्डी मलकापुर और तालागड्डा में कुतुब शाही मस्जिदों की बाड़ लगाने के हवाले से ये मसला उठाया था। गुज़िश्ता 3 महीने से इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की वजह से तेलंगाना वक्फ बोर्ड कुतुब शाही मस्जिद के हुदूद में बाड़ लगाने का मसला नहीं उठा सकी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की एक टीम मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ एक सरकारी शिकायत शुरू कर रही, जिसमें मस्जिद के अहाते में बाड़ लगाने के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जलील अहमद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और हमारे साथी एमए हकीम इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड, हम लोग आज सीओ साहब के जैसो कहने पे जैसो तालागड्डा, गुड्डी मलकापुर, सब्जी मंडी के इलाके के जो गैर आबाद मसाजिद है उसका इंस्पेक्शन किए और गुड्डी मलकापुर इंस्पेक्टर से भी मुलाकात किए। आज जो एक वीडियो वायरल हो रही है जो न्यूसेंस पैदा कर रही है, हालांकि इसमें जैसो हमारे एमएलए साहब कौसर मोइनुद्दीन साहब 1.5-2 माह पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो हमारे नॉलेज में भी है और सीओ साहब के नॉलेज में भी है, जो बिल्कुल गैर आबाद है और वहाँ के पूरे गैर मुस्लिम के एरियो में है। और इस बात से जैसे उस पर एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि जैसे इलेक्शन काटा गया था, जिसकी वजह से कोई हर पुलिस वाला, रेवेन्यू, पूरे डिपार्टमेंट वाले जैसे मसरूफ़ थे। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अब इंशाल्लाह उसको जैसे फेंसिंग करके जैसे मसाजिद को जैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। नहीं, मसाजिद पूरे जैसे वक्फ बोर्ड में पूरे जैसे उसका जैसे एंट्री रहती है,
इंडोमेंट में कैसा आता है, इंडोमेंट में हम मंदिर वगैरह ऐसे रहते हैं, इंडोमेंट डिपार्टमेंट में मस्जिद नहीं आती जी। नहीं, इंशाल्लाह जैसे उसका रिकॉर्ड निकाल लेके उसको इंक्लोज करते हुए जैसा कल PS गुड्डेमाल कबर ताला टप्पा चबूतरा और कुलसुमरा PS में जैसे उसको कंप्लेन दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसको जैसे टीन शेड्स के फेंसिंग किया जाएगा। ऑलरेडी गैर आबाद है, उसको टीन शेड जैसे हम फेंसिंग कर लेके उसको जैसे महफूज कर लेंगे हम अपनी। सर इसके रिकॉर्ड की कॉपी भी मिल जाएंगी, कंप्लेंट के साथ PS में दिया जाएगा, सुने आपके सामने रहेंगे, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। कुछ बात करना है, अगर वो हिंदू की मस्जिद है जो गैर आबाद है, जो अदर कम्युनिटी एरियाज में रहने की वजह से आबाद नहीं हो सके, उसकी बेहरमती की जा रही है। इंशाल्लाह CO साहब की और MLA साहब कारवान MLA साहब की हिदायत पर उस पर एक्शन लिया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा मस्जिद को फेंसिंग करके। और गुड्डीमल का पूरे पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन देके ड्यूरिंग फेंसिंग प्रोवाइड पुलिस प्रोटेक्शन। कितनी मसाजिद है? 5 मसाजिद है यहाँ, जिसमें गुड्डीमल का पूर, ताला गड्ढा, टप्पा चबूतरा ये एरिया में है, इमामपुरा। तो इसके रिकॉर्ड्स आप लोगों के पास है? जी हाँ है, बिल्कुल पूरे रिकॉर्ड्स? जी हाँ, पूरे रिकॉर्ड से कंप्लेन के साथ हम एनक्लोज करके दिया जाएगा। मस्जिद है, ये मस्जिद के भी रिकॉर्ड्स है सब? जी हाँ, सब अवेलेबल। कितने साल पुरानी है साहब? ये अब कुतुबशाही दौर के है जी हाँ। और ये बोल के ऑलरेडी कंप्लेंट दे रहे हैं करते साहब, उन अपना क्लेम करते, पर हमारा पास रिकॉर्ड है, हम अपना क्लेम करेंगे इंशाल्लाह। उस पर CO साहब की हिदायत पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे नहीं लिया सके इंशाल्लाह आगे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। CPI तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी MLA कोन्नानेनी सांबशिवराव ने जुमेरात को खानसास असेंबली में नए खानसास असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद राव को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।